حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في قرآن المجيد كما ورد في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ٹاپک چوز کیا گیا ہے، جو آج کی شام کا ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے حجاب. اور حجاب کی اہمیت، حجاب کی امپورٹنس کیا ہے، وہ آج ہمارا موضوع ہے. بہرحال اگر حجاب کے اوپر ہم بات کرنا شروع کریں گے تو حجاب کے اوپر بات کرنا بہت آسان ہے. 5, 10, 15 منٹ کا کام ہے. اور قرآن کریم کی آیتیں کچھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے: یہ ایسے حجاب پہنو، اس کے سامنے پہنو، ویسا پہنو، اور ایسا کرو ویسا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. تو حجاب کا ٹاپک کلیئر، حجاب کا ٹاپک ختم. یہ جو حجاب کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارے اندر، یہ ہمیں پتہ ہے. اور یہ کانسیپٹ یہ عام ہمارے دماغ میں ہے. اور حجاب کی اگر ہم بات کریں گے، جب بھی ہم حجاب کی بات کریں گے تو فوراً مسلمان، غیر مسلمان، کافر ہے، چاہے پردہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو سب کے دماغ میں ایک ہی بات پیدا ہوتی ہے: حجاب is a piece of cloth, حجاب is برقع، حجاب is veil which a woman wears، جو ایک عورت پہنتی ہے غیر محرم کے سامنے. یہ حجاب کی ڈیفینیشن ہے. بس this is the main concept of حجاب in our heart, in our mind. No doubt، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، یہ کانسیپٹ اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بہت کم ہے، یہ بہت چھوٹی ہے. حجاب کو ہم نے وسیع کرنا ہے، اپنے دماغ، اپنا ہوریزن بڑا کرنا ہے. حجاب پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں وہ ہمارے اپنی غلطی کی وجہ سے اٹھتے ہیں. تو اسی لیے میں نے ٹاپک کو میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. نمبر 1، یہ جو حجاب کی بے حرمتی ہے، بے عزتی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. نمبر 2، جو ہمارے معاشرے میں سوال کیے جاتے ہیں ان کا جواب ہم کیسے دیں گے. نمبر 2 اینڈ نمبر 3، یہ جو حجاب ہے، حجاب کا کتنا بڑا فائدہ ہے، جو اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو سمرائز میں آپ کو بول دوں گی. نمبر 1، جو میں نے آپ کو کہا کہ حجاب کی بے حرمتی، حجاب کی بے عزتی، یہ کہاں سے ہوتی ہے. کیا یہ غیر مسلمان کرتے ہیں؟ حجاب پہ پابندی غیر مسلمان لگاتے ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن حجاب کی اصل بے عزتی، حجاب کی اصل بے حرمتی ہم مسلمان خود کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کیا کیا؟ پہلا جو ہمارا خود کا کانسیپٹ غلط ہے، برقع، نقاب، ویل، دوپٹہ، اٹ از حجاب.
بٹ یہ صرف یہ حجاب نہیں ہے. حجاب از ایوری تھنگ. حجاب از دا بیریئر وچ اسٹاپس یو فرام ٹاکنگ ٹو اے نان محرم. کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت کرنے سے جس سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے. اور یہ بے عزتی کیسے شروع ہوئی؟ ہمارے گھر سے. نمبر 1، جب ہمارے کزن بردرز کا آمنے سامنے میم شاید پلیز آن کرتے ہیں آپ مائک آف ہے. آپ کہہ رہے میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی جی کیا بات ہو رہی تھی پچھلے 2 سینٹنس. اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی پلیز جسٹ رائٹ اے میسج اینڈ آپ کوئی ایسے بولیں گے نہیں، آپ میسج کریے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو حجاب جو ہم نہیں کرتے وہ ہمارے گھر سے شروعات ہوتی ہے. فری مکسنگ ود آور نان محرم گھر میں، اور فری مکسنگ ود آور نان محرم وہ ہمارے گھر میں. جب ہم اپنے لڑکوں کو، بچیوں کو یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ آپ کا کزن غیر محرم ہے، آپ کو پردہ کرنا ہے. اگر آپ پردہ بھی کریں گی لیکن بات تب کریں گی جب آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اور وہ بھی آپ کریں گے ہمارے سامنے ایک الگ جگہ پہ اپنے کمرے میں، ویڈیو کال وغیرہ آپ نہیں کریں گے. نمبر 1 یہ بالکل کلیئر. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ حجاب، اس کا کانسیپٹ خراب ہوتا ہے. اور جب یہ بچے بچیاں کالج یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں پھر ان کا فری ہوتا ہے مکسچر ود ادر پیپل، اور وہاں پہ ان کو ہوتا ہے نا وہ کانسیپٹ گھر میں یہ بھائی جیسا ہے، یہ بہن جیسی ہے. سو دے فیل نو کائنڈ آف ریمورس ان دیئر ہارٹ. ہاؤ کین ناٹ وی ٹاک ٹو سچ اے بوائے، کیونکہ یہ میرا بھائی جیسا ہے. بھائی جیسا کوئی نہیں ہوتا ہے. جو آپ کا بھائی ہے جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کا غیر محرم ہے. ان کے سامنے آپ کا باڈی کا پردہ ہے، اور آپ کی آنکھوں کا پردہ ہے، آپ کی باتوں کا پردہ ہے. یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2، ہمارے سماج میں شادی بیاہ کا مسئلہ آپ دیکھیے. میں غیر مسلمانوں کی بات نہیں کرتی ہوں، پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کیا غلطی کرتے ہیں. جب ہماری شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں چھوڑیے، پھر کیا ہوتا ہے شادی میں وہ ناچ گانا، وہ لیو دیٹ. اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے ہماری شادی بیاہ میں، مگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ان گھروں میں جاتی ہیں جہاں پہ ان کو ایسا غیر محرم ہوتا ہے جس کو ملک موت کہا گیا ہے. یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا الحم موت. صحیح بخاری کتاب النکاح آپ کو وہاں پہ حدیث ملے گی، دیور موت ہے. ہمارے کزن، ہمارا دیور، ہمارے وہ سارے، ان کا ملنا جلنا، ان سے باتیں کرنا، ان کا سب کچھ یہ ہم سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تباہی ہم نے شروع کی ہے. اگر ہم نے اسٹاپ کریں گے انشاءاللہ ایک پورشن کم سے کم بہرا روی کا، بے شرمی کا بند ہو جائے گا. اگر کل بھابھی اپنے دیور کے ساتھ نکلتی ہے برقع پہن کے بھی، اسٹل شی از ناٹ الاؤڈ. اللہ نہ کرے کوئی اضطراری حالت ہے، کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں، دیٹ از سپریٹ کوسچن. لیکن اگر یہ عورت اور اگر یہ مرد اس کو چہرے پہ یہ دھاڑی ہے، یہ برقع پہنتی ہے، وہ نکلتے ہیں، یہ بھابھی اور دیور ہے، یہ حرام ہے، تب ان کا پردہ کہاں گیا؟ یہ جو برقع پہنتے ہوئے نکلتی ہے نا، یہ پردہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ آپ حرام کام کرتے ہیں. آپ نہیں جا سکتے ایک ساتھ. آپ کو کہیں جانا ہے محرم کے ساتھ جائیے، یا اگر آپ کو کہیں نزدیک جانا ہے اکیلے جائیے. اس ملک موت کو
मौत को अपने साथ नहीं ले जाना है। ये क्लियर कट, ये क्लियर वॉइस मैं आपको कहती हूँ। इसमें हम लड़कियां, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप और वो मर्द जो दयूस होते हैं, वो जिम्मेदार है जो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं। सिर्फ उनको एक बात है, बुर्का बुर्का बुर्का, लेकिन मुंह का पर्दा, आंखों का पर्दा, बातों का पर्दा। Allah has not given you permission. Yes, when there is required, जब जरूरत है। It is for the sake of Allah. आप कोई फजूल कलाम नहीं करते हैं। आपको पूछना है, मुझे कोई सवाल आलिम से करना है, I have to ask. मेरा कोई गैर महरम से सवाल है, I can ask. But there are limits. मुझे अपनी आवाज में सॉफ्ट नहीं रहना है। जैसे सूरह अहज़ाब में ये कहा गया अल्लाह की रसूल की बीवियों से कि जब आप बातें करेंगे आवाज को मत बनाइए नरम, उनके दिल में बीमारी हो सकती है। ये तो उम्मुल मोमिनीन है, उनका दर्जा कितना बुलंद है, तो मुझे और आपको इस बात का कितना ख्याल रखना है। तो ये पहला स्टेप, पहला गलत काम, पहली बेइज्जती, पहले पर्दे की पाबंदी, ये हमने खुद लगाई है। लेकिन बाहर करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि गैर मुसलमानों ने हिजाब पे पाबंदी लगाई। पाबंदी हमने लगाई, इसको खुदा न खास्ता बेइज्जत हमने किया। बस कपड़ा पहन दिया, वो हो गया बुर्का। फिर ये क्या करते हैं मोबाइल फोन के साथ, क्या करते हैं बातें, किन से मिलते हैं, और ये कैसे कजन के सामने बेपर्दा आते हैं घरों में, उनका आना जाना फ्री होता है। वहां पे हमारी नजर, वहां पे हमारी जो हमारा दिल है वो जाता नहीं है। ये है, पहले इस चीज को रोकना है। एंड यू एंड आई, वी कैन स्टॉप इट। कोई हमें इससे रोक नहीं सकता है, कोई हमारे घर में जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि नहीं आप ही नहीं करेंगे। एंड मेरी प्यारी बहनों, ये हमको याद रखना है, हर एक चीज को आप मर्ज पर मत छोड़िए। जब आपके हक की बात है, आपकी इज्जत की बात है, आपकी शर्म की बात है, स्टैंड अप। यू हैव टू टेल योर हस्बैंड, आई कैन नॉट लिव विद योर ब्रदर। हाँ, ससुराल वाले हैं, माँ बाप है, वहां जो भी है, इज्जत एहतराम, वी नो दैट, क्योंकि इस्लाम हमें कोई लड़ाई नहीं सिखाता है। लेकिन आप कहेंगे ये हक है, ये पर्दा है, हया है, शर्म है, मैं आपकी इज्जत हूँ और मेरी इज्जत की हिफाजत करना अल्लाह ने आपको जिम्मा दिया है। मैं आपके भाई के साथ, जिसको अल्लाह के रसूल ने मलकुल मौत कहा है, मैं नहीं रह सकती। स्टैंड अप एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट फॉर इट, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर हिजाब, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ऑनर। ये सबसे बड़ी गलती जो हमारे घरों में होती है। इस गलती को रोकना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, समाज में होता क्या है, औरतों को सवाल किए जाते हैं, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं हिजाब को लेकर। अब मैं 3 मेन क्वेश्चंस जो ज्यादा हिजाब के खिलाफ बोले जाते हैं और हमें उकसाया जाता है, देखो हिजाब, इसके बारे में वो ये कहा जाता है, कुछ सवाल है। सवाल पहला है, देखो औरतों, मुसलमान औरतों, तुमको अल्लाह ने कहा है हिजाब पहनो, पूरा बुर्का पहनो, अपने आप को कवर करो, लेकिन मर्द को कोई हुक्म है ही नहीं। वो तो ऐश करता है, वो तो ऐसे वैसे घूमता है, उसको कुछ कहा नहीं है अल्लाह ने, सिर्फ अल्लाह ने तुमको कहा है। ये क्या मजहब है, कौन सा इस्लाम है जो आपको कहता है पर्दा करने के लिए? इसका जवाब है, कहाँ पे है? कुरान में है। किधर है? इसी सूरह नूर में है, जो मैंने आपके सामने सूरह नूर की ये आयत करीमा तिलावत करी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए मोमिन मर्दों, अपनी निगाहें नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। कुरान में जब भी हिजाब की बात आई है, कुरान में जब भी पर्दे की बात आई है, तो अल्लाह ताला पहले मुखातिब होते हैं मर्दों से, फिर होते हैं मुखातिब औरतों से। लेकिन अब औरतों को कहा गया है आपको पूरा ड्रेस पहनना है और ये आपके महरम है। लेकिन हिजाब, पर्दा, मॉडेस्टी, कैरेक्टर, जितना अल्लाह बोलता है औरतों को, उतना ही अल्लाह बोलते हैं ये मर्दों को भी। इसका एक और जवाब है, किधर है? हदीस में क्या फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया,
मुझे गारंटी दो चीजों की, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, बशारत देता हूँ जन्नत की। Beloved Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has said that give me guarantee you will protect these two things. मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6474। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो दो चीजें क्या है जो तुम्हारे दो जा के दरमियान है और जो तुम्हारी दो टांगों के दरमियान है, इनकी हिफाजत करो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। और हमारे क्या है जा के दरमियान? हमारी जबान। मैंने पहले कहा ना, हिजाब इज नॉट ओनली बुरका, इट इज नॉट ओनली पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज द मॉडेस्टी, utmost character of a Muslim man and a Muslim woman। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? वो जो तुम्हारे जौ के दरमियान है वो है तुम्हारी जबान, और जो तुम्हारी टांगों के दरमियान है, बिटवीन योर लेग्स, योर आपकी शर्मगाह। अब आप मुझे बोलिए कहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इट इज ओनली फॉर अ वुमन? इट इज फॉर बोथ। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है कि अल्लाह ताला सिर्फ औरतों को कहते हैं, इस्लाम में सिर्फ औरत को कहा है पर्दा पर्दा पर्दा, नो, मेरा इस्लाम मॉडेस्ट है। इस्लाम हमें हया सिखाता है और वो दोनों को सिखाता है, मर्द को भी और औरत को भी। फिर जो दूसरा है, अब तुम हिजाब करते हो, पता है क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी हैसियत कुछ है ही नहीं। तुमको कहा गया है अरे मरो हिजाब में, बुर्का पहनो, तुम इंफीरियर हो, तुम ये हो। कहाँ मर्द और कहाँ तुम? तुम्हारा कोई मैच है ही नहीं। ये तुम्हारा इस्लाम है, तभी तो तुम पर्दा करते हो। तो इसका जवाब भी हमें मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कुरान में मिलेगा। प्रॉब्लम है कि हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते हैं, तभी गैर मुसलमान और वो हम पे मुसल्लत है। क्या फरमाते अल्लाह ताला कुरान में? सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो। और देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा, वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू, और तुम्हें तकसीम किया कबीलों में, इलाकों में, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। फिर अल्लाह ताला कहते हैं लास्ट में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसको तकवा है। आप उनसे कहिए, उन गैर मुसलमानों से कहिए कि किधर अल्लाह ने बोला है कि यहाँ जेंडर अल्लाह ने स्पेसिफाई किया है। उन्हें सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ के सुनाइए, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 औसाफ बयान करते हैं मर्द और औरत। फिर क्या फरमाता अल्लाह ताला? अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है? मग़फ़िरत है उनके लिए और तैयार है उनके लिए अज्रन अज़ीमा, ये है। और फिर इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं इल्ला बितक़वा, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। दिस इज हाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चंस टू नॉन मुस्लिम्स, जब वो कहते हैं कि तुमको इस्लाम ने इतना ऑप्रेस किया है कि तुम इंफीरियर हो, इसलिए तुम पर हिजाब मुसल्लत किया गया है। पहला मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ औरतों के लिए है। दूसरा मैंने क्या कहा कि तुमको इंफीरियर माना जाता है, तुम कुछ हो ही नहीं। लेकिन ये बात गलत है, इसका जवाब हमें देना है। तीसरी बात, तुम हिजाब करते हो, पर्दा करते हो, ये तुम्हें रोकेगा पढ़ाई लिखाई से। जो रिसेंटली हमें एक तसादुम हुआ, हमने देखा क्या हुआ, हिजाब पे बैन लग गया और वहां पे क्या बोला गया? हिजाब और किताब। देखिए ना लफाजियत, ये क्या यूज करते हैं हमको नीचा दिखाने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, हमसे हमारी हया छीनने के लिए। हिजाब और किताब,
हिजाब और किताब, इनको कहिए कि हिजाब में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये नहीं कहा कि हिजाब करो तो तुमको फिर इल्म हासिल करने से रोका गया है, ये तो नहीं है इस्लाम में। किसने कहा? ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कुरान में कि जो सबसे पहली वही नाज़िल हुई अल्लाह के रसूल पर, वो क्या है? इक़रा, रीड, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से। खलक़ल इंसान मिन अलक़, who created human from congealed clot of blood। अल्लाह ने पहले ये कहा, अल्लाह ने पहले एजुकेशन के बारे में कहा, सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। और इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी कुरान की आयत या कोई ऐसा हदीस नहीं है जहाँ पे इस्लाम ने औरत को रोका है इल्म हासिल करने से। और दूसरी बात, अगर कोई औरत आलिमा है, वो स्कॉलर है, she too can give fatwa without any doubt। किसी ने रोका नहीं है, कोई ऐसी कुरान की आयत नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसको ये ना रोका गया कि इस्लाम ने कि औरत जो है वो फतवा नहीं दे सकती है। she can give fatwa, कंडीशन है आलिम है, मुसलमान है, जो भी अकीदा सही है, सब कुछ वो जानती है उसके बारे में। तो ये है कि अल्लाह ताला ने नहीं रोका है। आप मिसालें देंगी, अब मैं सारी मिसालें बयान नहीं कर सकती। हमारी 4 रोल मॉडल्स आसिया, खदीजा, फातिमा, मरियम रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना वो सलीमुल अक्ल और सलीमुल फितरत वाली औरतें थी। आप देंगी मिसाल उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप दे मिसाल सफिया हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, आप दे मिसाल उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा। और मशवरा, एजुकेशन है, इल्म है कि एक औरत का मशवरा भी लिया जा सकता है। जैसे आपको पता है हुदैबिया के टाइम क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे करो ज़बह, जानवर को कुर्बान करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं उठे क्योंकि उनको रोका गया था ना। तो फिर उम्मे सलामा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप चाहते हैं कि ये लोग कुर्बानी करें? आप उठिए, आप पहले खुद कुर्बानी करें, ये भी करेंगे कुर्बानी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बात को सुना, उस पे अमल किया, आपने कुर्बानी की और वो भी आ गए आपके पीछे वो जानवर को ज़बीहा, उनको ज़बह करने के लिए। आप क्यों जाएंगी दूर? इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, उनकी माँ की मिसाल दीजिए। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह, उनकी माँ की मिसाल दीजिए। या जो हम कहते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह, इनकी माँ की मिसाल दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ पे मेरी बहनों ने जो बहुत बड़ी, जिनको अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है, उन्होंने यहाँ पे स्पीच अपना टॉपिक दिया। वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी फारिग है, उन्होंने पढ़ा है, लिखा है और हिजाब में रहकर वो बातें करते हैं। these 3 things, इस पे हम अमल करेंगे। पहली बात उस पर अमल करना है, सवाल को कैसे जवाब देना है। और ये है कि इसमें अब जो तीसरा वाला पॉइंट है, अब इससे क्या होता है, हिजाब करने से क्या होता है औरत को, क्या कोई फायदा होता है, वो किन से बचती है? बहुत फायदा है। पहली बात है औरत क्यों करती है हिजाब? इट इज ऑब्लिगेशन, नॉट अ चॉइस। इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज ऑब्लिगेशन। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, इट इज ऑब्लिगेशन। सो जो एक मुसलमान औरत है वो अपने आप को जो उसका विल है उसको सबमिट करती है अल्लाह की रजा मंदी के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए। जब ये औरत हिजाब करती है, इसको क्या फायदा होता है? फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पीस। दूसरी बात है। तीसरी बात, जो औरतें हिजाब नहीं करती है, इसको एक दकियानूसी बात समझती हैं। आपको पता है उनको क्या है समाज में? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। They have to prove their identity. How they prove it? By wearing dresses, non-selling dresses. उनको लगता है कि मुझे आगे आना है, जब तक ये नहीं पहनूंगी, ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे कौन बोलेगा। लेकिन अब आप देखिए मुसलमान औरत जो पढ़ी लिखी है, वेल
जो लिटरेट है, जो मॉडर्न भी है, ये मॉडर्न क्या होता है मैं आपको भी बता दूंगी, वो क्या करती है, she does not prove, she has not to prove herself, वो इन बातों को अपने जूते की नोक पे रखती है, वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी इस बात को रखती है जूते की नोक पे, क्योंकि उसको क्या अपने आप को प्रूव करना है, she is what she is। किसी भी मुसलमान को अपने आप को प्रूव नहीं करना है, we are slaves of Allah, जिसको तकवा है वही बेहतरीन इंसान है। What I have to prove by wearing nonsense dresses? What I want to prove? I have to prove nothing। जब मैं हिजाब में रहती हूँ मैं अपने आप को लिबरेट करती हूँ from the shackles of slavery। You will say how? जब एक औरत पागलपनी ड्रेस पहनती है तो उसको इम्प्रेस करना है, किसको? अपनी जो औरतें हैं, मैंने आज ये पहना है कल ये पहनूंगी, ये जो मर्द है वो उसकी तरफ माइल हो जाए, वो फिर ज्यादा उसका दिमाग, उसका दिल, उसका टाइम जाता है इन्हीं ये जो उसकी ड्रेसेस है इनको लाने में, इनको चेंज करने में उसके ड्रेसेस जाती है। मगर दूसरी बात, ये जो ये औरत है जो पर्दा करती है, शी इज लिबरेटिंग हरसेल्फ। जब वो अपने आप को बचाती है ना इन सारे फजूल कामों से, वो क्या करेगी, ज्यादा इल्म हासिल करेगी, ज्यादा कुरान को पढ़ेगी, ज्यादा अहादीस का मुताला करेगी, और इस्लाम माँ की गोद में पलता है और इस्लाम माँ की गोद में नूर के सांचे में ढलता है। ये कब ढलेगा? जब ये आलिम होगी, और ये आलिम कब होगी? जब ये इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगी, और ये माइल कब हो जाएगी? जब अपने आप को एक फ्री करेगी, ये गुलामी का इनकार करेगी, गुलामी को अपने जूते की नोक पे रखेगी। She is defying all these things and she will। And दूसरी बात है, इससे क्या होता है, जब एक मुसलमान औरत पर्दा करती है वो एक अलग औरत लगती है। मेरी बहनों एक बात हमेशा याद रखना, जब एक औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है, इसको मर्द किसी और नजर से देखता है, वो कहता है आ गया मेरा खिलौना, जहां से चाहूं मैं से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अरे मैडम आज तो बड़ी वो लग रही है, ये लग रही है। बेहयाई बेशर्मी की हद होती है जब एक गैर महरम एक ऐसा इंसान तारीफ करता है जिसका कोई भी वास्ता नहीं है आपके साथ, वो शैतान बन के आते हैं आपके सामने। लेकिन जब यही औरत घर से बाहर निकलती है पर्दे में, वो कहती है मैं अल्लाह की बंदी हूँ, आई एम मॉडर्न, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं हया वाली औरत हूँ, और उसकी तरफ वो मर्द किसी और नजर से देखेगा, वो कहेगा नो ये वो नहीं है जो मैं कहता था, मैंने देखा है, ये वो औरत नहीं है। तो वो उसकी तरफ वो इज्जत, वो एहतराम, वो खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? ये मर्द खुद ब खुद इस औरत से दूर चला जाएगा। इससे बड़ी इज्जत आपको क्या चाहिए कि आपसे गैर महरम दूर होते हैं, ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। और जब ये औरतें बापर्दा औरतें घर से बाहर निकलती है, ये अलग औरतें हैं, इनकी पहचान इनके हिजाब से होती है। जो भी मेरी बहन ने कुरान करीम और कुरान पाक की तिलावत, ये आयत करीमा तिलावत की सूरह अहज़ाब की, कि कहीं अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और उम्मत की औरतों से वो घर से बाहर निकलेंगी तो पर्दा करेंगी, वो पहचानी जाएंगी और उनको परेशान नहीं किया जाएगा, उनको नहीं किया जाएगा परेशान। दिस इज हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द हिजाब। नाउ एक बात मुझे कहनी है, वो लोग, ये एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगी, मॉडर्न औरतें हैं ना, मॉडर्न जो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं देखो हम क्या मॉडर्न हैं, हम क्या पहनते हैं, जैसे हमारी मर्जी है वैसे हम निकलते हैं, वैसा पहनते हैं। तो आधे कपड़े पहनते हुए निकलते हैं ना बाहर, इनको कहो तुम मॉडर्न हो। अगर तुम मॉडर्न हो तो फिर जान लो तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, क्योंकि वो कपड़े पहनते ही नहीं है ना। इफ यू से, अगर तुम्हारी सोच ये कहती है कि मॉडर्निटी मीन्स टू वेयर लेस क्लोथ्स, देन animals are more modern than you because they don't wear any clothes at all. This is how
we can present ourselves. बाहर फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा कोई हिजाब पर बैन लगाने की जब हम खुद अपने हिजाब की हिफाजत करेंगे। मैंने कहा हिजाब अपनी बॉडी का, हिजाब आंखों का, हिजाब जबान का, जो मैंने आपके सामने कुछ ये कुरान करीमा की कुछ आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस मैंने रखे हैं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जब एक औरत बालिग होती है वो बालिग होने पर हिजाब नहीं करती है अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता है। और अल्लाह का वादा है अपनी मोमिन बंदियों से कि जब भी वो अल्लाह ताला के अहकाम की पासदारी करेंगी अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। क्योंकि एक हदीस में आता है जो अबू दाऊद है और दूसरी किताबों में मौजूद है और जो हदीस सही है, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे लिए जन्नत में जाना कितना आसान है औरतों के लिए। उन्होंने क्या फरमाया, क्या करना है? 4 काम। नंबर 1, if a woman offers 5 times salah, if a woman fasts in the month of Ramadan, if a woman observes parda, if a woman obeys her husband, she will enter into paradise by whichever gate she chooses to. Now tell me, my dear sisters, हमारे लिए जन्नत में जाना आसान कर दिया अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ पे मैं इसका करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने इसको बहुत मुख्तसर रखा। जो हमारे समाज में जो हो रहा है मैंने इसको उस तरीके से बोला आपको। बाकी हिजाब लंबा, हिजाब मोटा, हिजाब में कोई बनाव सिंगार नहीं होना चाहिए, we all know about it। लेकिन मैंने वो बातें आपके सामने नहीं रखी because we know everything about that। जो एक औरत का जो ये जो पर्दा है वो कैसा है। अब आपके सामने ये मैंने टॉपिक रख दिया। अगर आपको कोई सवाल है आप कहिए मुझे, हो सकता है कोई पॉइंट स्किप हुआ हो तो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। आई एम सॉरी अगर कोई गलत बात है वो मेरी तरफ से अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला मेरी खताएं माफ करे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम कुरान और हदीस पर चलें और अल्लाह ताला हमें उन औरतों में से बनाए जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है और जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।